Hello Manas, Hi Shaksham. do you know the format of formal letter? Yes, I know the format of formal letter. But do you think our audience know the format of formal letter? I don't think so. That's why they are here to watch our video. So I think you should start with it. Yes, let's begin. First we will write the sender's address. Sender's address is the address whoever letter is sending. Like भेजने वाले का पता. Then we have to leave one line. And write date. We can write date in two types. We will tell you after it. Then we will leave one line and write the receiver's address. Receiver's address is the address whoever the letter is receiving. Then we have to leave one line and write. Subject. Subject means a short matter of the letter. Then we have to leave one line and write salutation. Salutation is a respected word given to a male or a female. If the person is a male, you will write sir, and if the person is a female, you will write madam. Then we will write body of the letter. Body of the letter means we can write body of the letter at least at 6 or 7 lines. Then we will read one line and write salutations. Salutations consist of three parts: thanking you, subscriptions, and sender's name. In sender's name, you will write the name of yourself. In subscription, you will write your obediently, faithfully, and sincerely as whoever you will need to write. And then you will write thanking you on the top of everything. Thank you. And now our sir will explain with a short example. Good morning, sir. Good morning, boys. So well explained. I don't think so. They need any type of now explanation about the format. So directly, I should give them example only. Yes, you should, So viewers, how you got the performance? How do you like the performance of Saksham and Manas? So please write it in the comment box. And if you like my performance, you can also write. But these two boys are doing so well. And you have also watched the video of Shreya and Shruti. So if you do not watch that video, go to description box. There is a link. You can go and watch it. Okay, so boys, now I'll take over it and give them example of formal letter. You already explained the Yes, format, so I don't think there is a need to explain the format. So directly explain the example. So Thank just you. go and sit. Hello viewers, so myself Satyam Singh Patoria, and you all know I'm the टीचर ऑफ टेलवेल इंस्टीट्यूट. तो एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है और आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर लिखते कैसे. और आज मैं आप लोग को सबसे कॉमन सा एक फॉर्मल लेटर बताने वाला हूँ जो आप सबको लिखने में होती है प्रॉब्लम. जब आप लोग को लेनी होती है छुट्टी तो आप क्या करते हैं, सर हमारी एप्लीकेशन लिख दीजिए, हमें छुट्टी पे जाना है, 2 दिन की छुट्टी चाहिए, 4 दिन की छुट्टी चाहिए. ओके सर, भैया दीदी यहाँ वहाँ ढूंढते हैं. तो सिंपल सी बात है, मैं आज आपको यहाँ पर लिखवा देता हूँ, आप इसी को कॉपी कर लीजिएगा और जब भी आपको स्कूल से, कॉलेज से या कहीं से भी छुट्टी चाहिए हो, सीधा का सीधा देखिए एग्जाम्पल वहां पर लिख दीजिएगा. ओके, देखिए सबसे पहले आपको क्या लिखना है, जैसा कि हमारे दोनों स्टूडेंट्स ने आपको बताया, सबसे पहले आपको लिखना है बेटा सेंडर्स एड्रेस, मतलब कि अपना खुद का एड्रेस. मान लीजिए मेरा एड्रेस है हाँ से, ठीक है, ये मेरा एड्रेस है. उसके बाद मुझे एक लाइन, मतलब कि मुझे थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है बीच में. उसके बाद मैं लिखूंगा डेट. तो डेट में डायरेक्टली लिखूंगा 9 जुलाई 2023. अगर मुझे ये डेट का फॉर्मेट नहीं है तो मैं इसको चेंज भी कर सकता हूं. आई कैन राइट जुलाई 9 2023. ओके, इसके बाद मुझे फिर से एक लाइन छोड़नी है और अब मुझे लिखना है द. तो ऑब्वियस सी बात है, जब भी आप किसी लीव एप्लीकेशन लिखते हैं तो या तो प्रिंसिपल को लिखते हैं या डायरेक्टर को लिखते हैं. डेजिग्नेशन होती है जिस भी इंसान को हम लिख रहे हैं उसकी पोस्ट क्या है. तो मान लीजिए स्कूल में लिखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है उसकी पोस्ट प्रिंसिपल है. अगर कोई आपके होटल में है तो मैनेजर होंगे. ओके, या फिर अगर आप के कोचिंग डायरेक्टर हैं तो आप वहां डायरेक्टर लिख सकते हैं. जो भी उनकी पोस्ट है, आप उनको उनकी पोस्ट वहां मेंशन करेंगे, उनका नाम नहीं. देन आफ्टर एड्रेस मतलब अगर स्कूल का है तो स्कूल का एड्रेस लिख दीजिए, ठीक है. अगर आपके होटल का है तो होटल का एड्रेस लिख दीजिए.
ओके, इस तरीके से। देन आफ्टर फिर से एक लाइन छोड़नी है और यहां पर लिखना है आपको बेटा सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्यों लिखना होता है पता है आपको? सब्जेक्ट से हमें पूरे लेटर को पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। कभी कभी हम जब सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो सब्जेक्ट पढ़ने के बाद ही हमें समझ में आ जाता है कि एक्चुअल में जो लेटर है वो किस बेस पर है। सो सब्जेक्ट में है हमारे पास, जैसे मान लीजिए आपको एप्लीकेशन लेनी है, लीव लेनी है, तो आप लिख दीजिए एप्लीकेशन फॉर, मान लीजिए कितने दिन की लीव लेनी है, 2 दिन की लेनी है ना, तो 2 days लीव। ठीक है, राइटिंग के साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा, इतनी ही बेटर लिख सकता हूँ मैं। ओके, तो 2 दिन की मुझे लीव चाहिए, वो ठीक है। ओके, इसके बाद मुझे क्या लिखना है? सर मैडम। अब देखिए, अगर मान लीजिए कोई मेल है, जैसा कि बच्चों ने बताया था आपको, तो सर लिखेंगे। अगर कोई फीमेल है तो मैडम लिखेंगे। बट कभी कभी कुछ केसेस में, जैसे मान लीजिए हम डीएम को लिख रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कि डीएम जो है वो मेल है या फीमेल है, तो उस केस में हम दोनों ही लिख देते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बिल्कुल इजी सी कुछ बॉडी ऑफ द लेटर की लाइंस बता रहा हूं। सबसे पहले लिखिए, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन। आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन। ठीक है, सॉरी यहाँ पर लिख देता हूं। यहां पर आप आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू भी लिख सकते हैं, नो इश्यूज। ओके, दैट ऑब्वियस सी बात है, जब भी जो इंसान बीमार पड़ा है उसे वो बीमार ही हुआ है। जब भी कोई इंसान को छुट्टी लेनी है वो बीमार ही हुआ है, तो वही आप लिखेंगे, दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम। मैं इसमें आपको 2 रीजंस दूंगा अभी। सफरिंग फ्रॉम, हाई फीवर लिखना, 2 दिन की छुट्टी है, नॉर्मल फीवर में तो 1 ही दिन की मिल पाती है। ओके, हाई फीवर एंड माई डॉक्टर advised me to take proper bed rest, to take proper bed rest। तो मेरे डॉक्टर ने, मेरे को बहुत ज़्यादा तेज फीवर है और मेरे डॉक्टर ने मुझे कहा है कि रेस्ट करना है। ठीक है, छोटा सा फॉर्मेट है, ये नहीं लिखना है। मान लीजिए आपको कहीं बाहर जाना है तो आप एक और चीज लिख सकते हैं, दैट के बाद ही यहां से कंटिन्यू करेंगे, दैट आई एम गोइंग आउट ऑफ स्टेशन along with my family for some urgent piece of work। क्योंकि आप बोलोगे शादी अटेंड करने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, तो टीचर गुस्सा होगा। ठीक है, लिखिए कुछ बहुत अर्जेंट काम के लिए जा रहे हैं। तो ये 2 रीजंस आप यूजुअली दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे क्या? सेकेंड पैराग्राफ पे आ जाइए। सो अभी पहले वाले पैराग्राफ में सिर्फ हमने अपनी प्रॉब्लम्स बताई। सो आई काइंडली रिक्वेस्ट यू, आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू प्लीज grant me a leave for 2 days। और उसके बाद लिख दीजिएगा, I will be highly obliged you for this help। ठीक है, और लास्ट में जैसा कि बच्चों ने बताया था आपको, थैंकिंग यू योर्स ओबीडियंटली, और लास्ट में आपका नाम, जैसे कि मेरा नाम है सत्यम। ठीक है,
अब मैंने यहां पर योर्स ओबीडियंटली क्यों लिखा, मैंने यहां पर सिंसियरली या फिर फेथफुली क्यों नहीं लिखा, ये है आज का आपका क्वेश्चन। जिसको भी इसका आंसर पता है कि इन तीनों के अंदर क्या डिफरेंस है, वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो ये था हमारा एक छोटा सा एग्जाम्पल जिसमें हमने आपको फॉर्मेट बताया और एक एग्जाम्पल दिया, सेम विद द फॉर्मल लेटर, सेम विद द इनफॉर्मल लेटर। जिन्होंने इनफॉर्मल लेटर वाला वीडियो नहीं देखा है, प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर लिंक पड़ी हुई है, वहां पर जाके इनफॉर्मल लेटर का वीडियो भी देखिए। तब मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।